there is This necessary, conference there will is now be Sanskrit. recorded. So we'll start our session. Guna Vyadhi and Vyadhi Avastha Pratyanik Beshesh Sankalpana. So firstly, I bow my head to my guru, Vaidyaratna Sri Tatya Shastri Jalukar, who had taught me some Ayurvedic concepts and gave more interest towards Ayurvedic concepts. Ayurveda Swam Shastram Nanyat Atrasti Bhutale पुण्यम पुण्यफलम पुण्यम पुण्यप्रदम प्रोक्तम पंच प्राण विवर्धनम शाश्वतेषु सर्वेषु सिद्धांतेषु प्रतिष्ठितम चैतन्यम वैद्यकम चेतत प्रणमामि पुनः पुनः. This is the composition of late Vaidyaratna Sri Tata Srasti Jalukar on Ayurveda, and he gave total idea about our Ayurvedic sciences and their concept. That concepts, every concept in Ayurvedic science is Shashwat concept. That means more years ago, 4,000 years ago, there was some kind of Siddhanta and some kind of explanation given by our Vaidyas and Acharyas. Same is applicable here right now also, because no need to change over the concept and over the Siddhanta. We find that in allopathic medicine, one tablet is introduced and launched, or one molecule is introduced and launched for such kind of fever, or there some indications are there, but these tablets are getting changed or they are getting removed by the years because it has some side effects on our body, or it had some untoward effect on our body. So there is a changing concepts in other sciences, but Ayurveda has a very unique and shashwat concept that cannot be changed, and even without changing that concepts we can follow Ayurveda and their and its basic principles right now also in our day to day life. So that is the greatness of our science. So we are talking on Guna Pratyanik, Vyadhi Pratyanik and Avastha Pratyanik Bheshaj Sankalpana. Pratyanik means Virodhi. Guna Virodhi Chikitsa. That means whatever the gun present in our body, it has to be treated with opposite type of guna. If Sukshmatva, Dravatva, Charatva, Stiratva, Vishadatva, Parushatva, Pishitatva, these type of gunas, Vihushati gunas that are mentioned in our Sanhitas, Gurur Manda Himasnigda Shlashna Santra Murdustira, Grunasa Sukshma Vishaja, Vihushati Savi Paryaha. That means opposite gun is used for treating that type of guna. Drava gun, extended Dravagun or increased Dravagun can be treated with Rukshagun. That kind of treatment is called Guna Pratyanik Chikitsa. Vyadhi Pratyanik Chikitsa, that means whatever Vyadhi is present in our body, Granthakaras and Sanhitakaras has told their right solution in their Vyadhi Chikisitam Adhyay or in Kalpa Adhikara. That is Vyadhi Pratyanik Chikitsa. And Avastha Pratyanik Chikitsa, that means every disease has some stages. Every disease has some sampraptis. Every disease has some samsarga sannipatat. Every disease every disease has some their special characters. So that kind of avastha, every disease has some avastha, nava avastha, jirna avastha, or something like that. Every avastha has been treated by various steps according to chikitsa siddhanta, that is avastha pratyanik bhaishaj, that we have given, that we have called avastha pratyanik bhaishaj. So these types of chikitsa, that is actually these are some variants of chikitsa: guna pratyanik chikitsa, vyadhi pratyanik chikitsa, and avastha pratyanik chikitsa, that we are treating mainly the patient and getting better result for that. Okay, so content of this today's lecture is need for guna pratyanik, vyadhi pratyanik, and avastha pratyanik medication. Why are we in need of this kind of medication, and how can we manage that this kind of medication will treat guna pratyanikta, vyadhi pratyanikta, and avastha pratyanikta? Then Ayurveda to dosha guna vyadhi and vyadhi avastha pratyanik chikitsa. What are references mentioned in text that we have to discuss today? Then current scenario of proprietary medicines, how proprietary medicines and company made medicines are here now, and what kind of application of medicine by concept of these others and these all above guna vyadhi and avastha we have to treat patients. These are the content for today's lecture.
So let's start our lecture. We all know that prayogam shamayet vyadhim yo anyamanyam udiret naso vishuddha shuddhastu shamayet yonakopet. This is the chikitsa definition, or what we call sampurna chikitsa is this. Prayoga, that means we have to apply some medicines, some shodhana dravya, some ahar viharas, some patya patyas. These are prayoga. By a specific prayog, the vyadhi can be cured. जो व्याधि हमको क्योर करना है, जो व्याधि हमको अच्छा करना है, उसमें जो कुछ भी प्रयोग हम करते हैं, उसमें अगर द्रव्य है, उसमें अगर अद्रव्य है, उसमें अगर चिकित्सा है, उसमें अगर गुणांतराधान है, जो कुछ भी हम प्रयोग करते हैं उसको हमने चिकित्सा बोला है, दैट वी कॉल्ड अ चिकित्सा. बट दैट प्रयोग शुड नॉट इंटरफियर इन अवर बॉडी that other disease will come out, or other things, abnormal things will be come out. So that is called शुद्ध चिकित्सा. So जिस प्रयोग से हम व्याधि शमन तो करती है, लेकिन यो अन्यम अन्यम उदिर है, अगर दूसरा व्याधि उससे तैयार होता है, नहीं तो दूसरा व्याधि उससे निर्माण होता है, तो वो व्याधि हमको निर्माण होना नहीं चाहिए. इस टाइप की चिकित्सा हमको चाहिए, यानी जो प्रयोग से हम ये व्याधि पूर्ण तरह से हम व्याधि मुक्त करते हैं, उसे हम विशुद्ध चिकित्सा करते हैं. और इसी चिकित्सा का, विशुद्ध चिकित्सा का वर्णन हमारे ग्रंथों में, जो कुछ भी हमको करना है वो इसी टाइप में करना है, दैट इज कॉल्ड प्रयोग. भेषज संकल्पना एंड चिकित्सा सिद्धांत, these are related to each other, but there is some difference. भेषज संकल्पना, that means what kind of भेषज we want to use, or what kind of bheshaj we have to use in some kind of avasthas, in some kind of vyadhi avasthas, or in some kind of vyadhi pratyanikata, guna pratyanikata and dosha pratyanikata. What kind of bheshaj, or what kind of bheshaj form we have to use? We have to use either kadha, either swaras, either hima, either fanta, either gutivati, either aswarishta. What kind of bheshaj we have to use? And chikitsa siddhanta are the basic things that we have to use bheshaj sankalpana accordingly with chikitsa siddhanta. These are related to each other but different. Let's see the example of आरोग्यवर्धिनी. आरोग्यवर्धिनी का वर्णन अगर हमने ग्रंथों में देखा तो उसमें यह आया है, वात पित्त कपोद्भूतान ज्वरान नाना प्रकारजान देया पंचदिने जाते ज्वरे रोगे गुटी शुभा पाचनी दीपनी पथ्या रुद्या मेदो विनाशिनी मल शुद्धकरी नित्या दुर्दर्शक शुत्रवर्तिनी बहुना अत्र किमुक्तेन सर्व रोगेषु शस्यते. इस टाइप का वर्णन रसयोग सागर में आया है आरोग्यवर्धिनी का. तो उसमें तो इतना सारा बताया कि वात पित्त कफोद्भूतान, तीनों दोष उद्भूत, तीनों दोष से उत्पन्न हुए ज्वर को, ज्वरा नाना प्रकार, ज्वर के नानाविध प्रकार को भी आरोग्यवर्धिनी ट्रीट कर सकता है. देया पंच देने जाते ज्वरे रोगे गुटी शोभा, यानी ज्वर 5 दिन के बाद भी अगर अपने शरीर में उपस्थित है तो हमको आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों में लिखा है. ये पाचनी, इट इज, ये पाचनी काम करती है, दीपनी काम करती है, पथ्य कर काम करती है, रिद्ध काम करती है, और मेदो विनाशिनी, मेद का विनाश करती है. मल शुद्ध करी बोला है उसको. दुर्दर्शक शुद्ध प्रवर्तिनी, यानी शुद्धा प्रवर्तन करती है, अग्निमांद्य कम करके अग्नि प्रदीप्त करती है. और बहुना अत्र की मुक्ति न सर्व रोगेषु शस्यते, सर्व रोग में आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है. लेकिन हमने अगर देखा तो when we see that आरोग्यवर्धिनी can be used in various diseases, but in various अवस्थाs we are unable to use आरोग्यवर्धिनी. इन तरुण ज्वर, नाना नाना प्रकार जान बोला है ज्वर का, लेकिन तरुण ज्वर में आरोग्यवर्धिनी का काम नहीं होता. नहीं तो कुष्ठ की कुछ अवस्था में आरोग्यवर्धिनी का बहुत काम अच्छा होता है, लेकिन कुष्ठ के अवस्था में, कुछ कुष्ठ में जहाँ पे रुक्षता जास्त है, जो रुक्षता ज्यादा है, नहीं तो खरता ज्यादा है, इस टाइप के कुष्ठ में हमारे आरोग्यवर्धिनी का काम नहीं होता, आरोग्यवर्धिनी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती. तो इससे हमको समझ में आता है कि हमको किस टाइप में, कौन से पथ्य कर आहार विहार का यूज करना चाहिए, और कौन से ड्रग का यूज करना चाहिए, और कौन सी अवस्था में करना चाहिए. फिर भी ग्रंथों के फलश्रुति में जो लिखा है वो तो हमको देखना ही है, लेकिन उसका भी प्रयोग हमको तरतम भाव में करना चाहिए, कौन से इसमें करना चाहिए, कौन से इसमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसके साथ करना चाहिए. एक आरोग्यवर्धिनी नाम का पुस्तक मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, उसमें आरोग्यवर्धिनी विविध अनुपान के साथ पूर्ण शरीर के रोगों में कैसे कैसे काम करती है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है. अच्छी तरह से संप्राप्ति विघटन उसमें कैसे होता है
वो भी दिया है, वो आप भी कभी भी देख सकते हैं। अभी हम गुण प्रत्यनिकता की ओर जाएंगे। गुण प्रत्यनिकता की ओर जाने के बाद हम व्याधि प्रत्यनिकता और फिर अवस्था प्रत्यनिकता देखेंगे। जैसे ग्रंथों में वर्णन दिया जाता है, तत्र रुक्ष लघु शीताकरा सूक्ष्मश्चलो नीला पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम स्निग्धः शीतः गुरुर्मंदा श्लष्णा मृत्स्ना स्थिरकपा। These are the qualities of our dosha. These are the qualities of our avikruta doshas, not vikruta doshas. What has ruksha lagu shitakara sukshma and chala guna. Pitta has sneha tikshna ushna lagu visrasara and drava guna. And kapha has snigdha shrita gurur manda shlashna mrusna and sthira guna. These types of guna are mentioned in our text. So Vat, Pitta and Kapha are described with the help of gunas and with the help of their karmas in our body. Any type of dravya has been described with the help of guna. Dravya gunena karmam kurute. Any type of dravya will act by guna only, will act by its property only. That means it can be act by rasa, it can be act by virya, it can be act by prabhava, but it should have some properties. That means guna. So guna is very important in our Ayurvedic chikitsa. When we see in detail in Dravya Guna, so we will find out that what are the importance of guna. Each guna has same each guna has some definitions and each guna has some properties and they act with their capacities on our body. So these type of guna are mentioned in our vata, pitta and kapha, and all types of guna are mentioned, all types of entity are mentioned through guna in our texts and sanhitas. So guna is most important. Then let's see the samprapti of vatavadi. Dehe srotaon se riktani purayitva nirobali. Karoti vividhan vyadin sarvang ekanga samshraya. This is the samprapti mentioned in our body. So what are srotas? Srotas we have seen. So we are not going in very deep, or we are not going in mutual concept and concept mentions in Ayurveda. What are the dravyas, what are gunas, what are vedis, and what are vedi avasthas. We don't want to discuss here, but we have to discuss some practical approach regarding giving medicines and regarding giving treatment. So dehe srotaon se riktani purayitva anilo bali riktani iti tuchani. Chakrapani says, what is rikta? What are rikta? Rikta are tuchha. Tuchha means snehadi gunashunya. That means they have rukshatva, kharatva, parushatva, vishadatva. That means nothing sneha is there. Nothing snehadi guna are there. And they have rukshata, kharata, parushata, vishadata. These type of gunas are present. And this in this type of shariras and these type of srotasas, puraitva anilovali. These srotasa are filled by vata, and vata vyadhi samprapti occurs. So Charak again says in Charak Sutrastan Adhyay 12 वात कला कलिय वात प्रकोपणानि खलु. वात प्रकोप हेतु उन्होंने बोले है, उसमें बोला है वात प्रकोपणानि खलु वृक्ष लघु शीत दारुण खर विशद कराणी शरीराणा. जो कुछ चेंजेस शरीर में होते हैं. व्हाट इज शरीर? हियर शरीर मीन स्रोतस. शरीर मीन स्रोतस. जो स्रोतस में जिस स्रोतस में वात प्रकोपक लक्षणें हमको दिखती है. वात प्रकोपक यानी क्या? जिस स्रोतस में खलु वात प्रणय खलु वृक्षता, लघुता, शीतता, दारुणता, खरता, विषदता हमको दिखती है, उस टाइप के स्रोतस में तथा विदेशु शरीरेशु, ऐसे टाइप के स्रोतस में वायु आश्रयम गत्वा. जब वायु वहां पे आश्रय करेगा, when earth will stay there, then and then only he is capable to make disease. If what does not stay there, what can't make disease there. So वात की जो गति है असज्जमान, अप्रतिहत गति है. वात, पित्त और शरीर, वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली वहन करते हैं. पूर्ण सर्वदेह श्रुतान, पूर्ण स्रोतस, संपूर्ण स्रोतस में वात, पित्त और कफ की उपस्थिति रहती है. और ये अविसज्ज यानी अप्रतिहत, कौन सा भी अवरोध होने के बजाय पूरी शरीर में पूरी तरह से गतिमान रहते हैं. अगर इनकी गति रुक गई तो ही हमारा शरीर व्याधि निर्माण करेगा. अगर इनकी गति रुकती नहीं है
तो वो व्याधि निर्माण करने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे बोला है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा, यानी पित्त कंबु पंगु है, कफ पंगु है, मल धातु भी पंगु है। वायुना यत्र नियंते, अगर वात उनको जहां कहीं भी लेके जा रहा है और वहां पे अगर इस टाइप की संप्राप्ति है, स्रोत से रिक्त है, नहीं तो स्रोतस में कुछ तो भी विकृति है, और जो विकृति के कारण अगर वात पित्त कफ वहां पर इनका संग हो गया, तो ही और तो ही ये व्याधि निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो ये व्याधि निर्माण करने में असमर्थ रहते हैं। सो तात्कालिक कारण जो सन्निकृष्ट हेतु है, सन्निकृष्ट हेतु ढूंढने की त्रिदोष इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं, और जैसे उनको सन्निकृष्ट हेतु मिलता है वैसे ही उनका प्रकोप होता है। अगर समझो ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, आपके शरीर में दोष की वृद्धि नहीं है, आपके शरीर में अगर दोष की प्रकृत गति है, तो आपको ये टाइप का संसर्ग नहीं होगा। अगर होगा तो भी कम होगा, कम लक्षण वाला होगा और जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पहले से ही दोष वृद्ध है और पहले से ही दोष लीन है, वहां पे उपस्थित है, शाखा में कोष्ठ में जहां पे कुछ है वहां पे उपस्थित है, अगर उनको इस टाइप का सन्निकृष्ट हेतु मिलता है तो बुरी तरह से प्रकोपित होंगे और बहुत बड़ा व्याधि निर्माण करेंगे। इसलिए हमारे दोष जब तक नहीं रुकते और हमारे दोष में विकृति जब तक नहीं होती, तो वो व्याधि निर्माण करने के लिए असमर्थ होते हैं। लेकिन ये कैसे हम पता चलेगा कि ये वात प्रकोप कैसे है, वात प्रकोप कैसा है, हमको उसके गुण से ही पता चलेगा। जब तक गुण से पता नहीं चलता तो हमको वात प्रकोप नहीं समझने वाला। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वृक्ष लघु शीत दारुण खर ऐसे टाइप के गुण अगर हमारे स्रोतस में उत्पन्न होते, वात में नहीं होते, स्रोतस में उत्पन्न होते, तो ही वात का प्रकोप होता है। अभी वात प्रशमन बोला है, यानी गुण विपरीत चिकित्सा बोली है, वात प्रशमनानि पुनः, पहले के जो गुण थे उसके अपोजिट गुण है, स्निग्ध गुरु श्लेष्ण मृदु पिच्छल घन कराणी शरीराणाम। ऐसे गुण अगर स्रोतस में उत्पन्न होते हैं, ऐसे गुण की चिकित्सा हम अगर स्रोतस को देते हैं, ऐसी गुण की चिकित्सा हमको स्रोतस को दी जाती है, तो तथा विदेशु शरीरेशु, ऐसे स्रोतस में वायु असज्जमान, वायु वहां पे जमा नहीं हो सकता, वायु वहां पे रह नहीं सकता, वायु गतिमान हो जाएगा, वहां पे चरण यानी गतिमान हो जाएगा, प्रशांतिम आपद्यते, वायु का प्रशम हो जाएगा। यानी हमने चिकित्सा कहाँ पे की है, चिकित्सा वात की नहीं की है, चिकित्सा हमने स्रोतस की है, जहाँ पे खरता परुषता इस टाइप के गुण उत्पन्न हुए, उसके विपरीत गुणों की चिकित्सा की है। यह है गुण विपरीत चिकित्सा, यह है गुण प्रत्यनिक चिकित्सा जो हमने स्थान पे की है, दोष पे चिकित्सा नहीं की है, वात पे चिकित्सा नहीं की है, क्योंकि वात में जो गुण है वो तो है ही, लेकिन ऐसे गुण अगर हमारे स्रोतस में उत्पन्न होते हैं तो वायु वहां पे सज्जमान होगा, वहां पे उपस्थित होगा और व्याधि निर्माण करेगा। लेकिन ऐसे अगर स्रोतस में गुण नहीं है तो वायु की गति अप्रतिहत हो जाएगी और वात दोष रोगों को निर्माण करने में असमर्थ हो जाएगा। इस टाइप को वात की चिकित्सा हमने किया है। यानी वात प्रकोप हुआ है, यानी क्या हुआ है कि जो शरीर में वृक्षता जैसे वात जैसे गुण निर्माण होते तो हम वात प्रकोप बोलते हैं। एक्चुअल वात का प्रकोप नहीं है, ये स्थान दृष्टि है। जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेन में से चढ़ गए और मुंबई आ गया, तो हम मुंबई तो नहीं आता, हम मुंबई जाते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि मुंबई आ गया। तो इस टाइप का है कि वात प्रकोप नहीं होता, वात स्थान में ऐसे गुण तैयार होते, स्रोतस में ऐसे गुण तैयार होते, वहां पे वात का चय होता है और फिर वात प्रकोप होने जैसा लगता है। इस टाइप की चिकित्सा नहीं तो इस टाइप की जो अवस्था है उसको हमको गुण प्रत्यनिक चिकित्सा करनी पड़ेगी। अभी आगे देखते हैं और एक रेफरेंस, कफ दोष सामान्य चिकित्सा में लिखा है वाग्भट ने, श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन रेचनम, वमन रेचन तो देना ही है, लेकिन कैसे देना है, तीक्ष्ण देना है, तीक्ष्ण वमन रेचनम। और अन्य के भी गुण बताए हैं, अन्नम वृक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम, वृक्ष तीक्ष्ण उष्ण, ये गुण बताए, यानी कौन से गुणात्मक आहार देना है तो कफ की वृद्धि जो बड़ी है, कफ बड़ा है वो कम हो जाएगा, यानी कफ के विपरीत गुण का हमको प्रयोग करना है। ये जैसे कुछ रेफरेंस है, ये हमको गुण प्रत्यनिकता दिखाते हैं, गुण प्रत्यनिक चिकित्सा दिखाते हैं। तो इस टाइप की हम चिकित्सा अगर करते हैं गुण प्रत्यनिक, गुरुवादी 20 गुण है, ये 20 गुण के प्रत्यनिक यानी एक गुण दूसरे से अपोजिट है, तो इस टाइप की चिकित्सा अगर हम करते हैं दोषों पे व्याधियों पे, तो गुण प्रत्यनिक चिकित्सा इसको कहलाता है। ठीक है, तो ये गुण प्रत्यनिकता हमने देख लिया, और इसके बाद हम देखेंगे व्याधि प्रत्यनिकता। एक्चुअल व्याधि प्रत्यनिकता देखने में हमको क्या देखना है, व्याधि प्रत्यनिक यानी क्या, व्याधि चिकित्सा अगर हमको करनी है तो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा, व्हाट वी कॉल व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य और व्हाट वी कॉल व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा, विल सी हियर।
We all are known that Rog Adhikar Kalpa has been mentioned in our text. Also in Agre Sangrah Dravyani. Musta Parpatako Jware. Any type of jwar will be relieved by Musta and Parpatak. Combination of Musta and Parpatak. That is Agra Dravya for jwar. रोग अधिकार कल्प. रोग अधिकार कल्प में मुक्तादि चूर्ण है, लास्ट वाला मुक्तादि चूर्ण श्वास रोग में है, उसका अधिकार श्वास में है, तो उसको हमको करना है श्वास में, लेकिन ये काम करता है नेत्र रोगों में. श्वास के रिलेटेड अगर कुछ नेत्र रोग होते हैं, नहीं तो नेत्र रोग के साथ अगर श्वास है तो उसमें हम मुक्तादि चूर्ण का उपयोग करना चाहिए. इस टाइप का जो वर्णन है, इस प्रकार का जो वर्णन है, उसको हम व्याधि प्रत्यनिकत्व बोलते हैं. व्याधि के अनुसार चिकित्सा करना. अग्र संग्रह द्रव्य में जैसे मुस्ता परपटक को ज्वर बोला है, वैसे ये व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य. मुस्ता और पित्त पापड़ा, मुस्ता और परपटक, ये ज्वर के लिए व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है. हमारे बहुत सारे कल्पों के फलश्रुति में बताया है. कल्प फलश्रुति में ये अभी अब मैंने आरोग्यवर्धिनी का एग्जाम्पल देखा, इसमें दिया है कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च मेह कुष्ठम, यानी कुष्ठ ज्वर शोष मेह, ऐसे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं. तो व्याधि के कल्पाधिकार में, नहीं तो कल्प के फलश्रुति में हमने देखना है कि वो कल्प कौन से व्याधि में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करते हैं, क्या बोलते हैं. जैसे वसंत सर्व रोगा नाम बोला है. सर्व रोग में वसंत के कल्प जो है लघु मालिनी, सुवर्ण मालिनी, जो मधुमालिनी वसंत है, जो वसंत कल्प है, वसंत कुसुमाकर रस, ये सभी कल्प सभी रोग में चलते हैं, ऐसे बोला वसंत सर्वरोगण. यानी इसकी प्रत्यनिकता इतनी अच्छी है कि हमने अगर तरतम भाव से उसको हर एक व्याधि पे इस्तेमाल किया तो उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला ही है. इस टाइप के जो कल्प है वो व्याधि प्रत्यनिक कल्प है. जैसे महावात विध्वंस रस है. महावात विध्वंस रस में भी हमने बोला है कि महावात विध्वंस सभी वातव्याधि के ऊपर काम करता है और सभी वातव्याधि शमन करता है. तो ये महावात विध्वंस हमको कब इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, उसको हमको व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य बोला है. सीतोपलादि चूर्ण उरक्षत में बताया है. उरक्षत में सीतोपलादि चूर्ण बताया है, तो उरक्षत में तो वह काम करेगा ही, लेकिन उरक्षत के बाद नहीं तो शोष निदान में हमने जो वर्णन बताया है, शोष निदान कैसे होता है, यानी शोष कैसे होता है, उसके अगर हम लक्षण देखें और उसमें सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग करें तो उसमें ये व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य करके काम करता है और व्याधि प्रत्यनिकता उसकी दिखाता है. तो इस टाइप का व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा हमको करनी चाहिए. कुछ मेडिसिन पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंपनी लाती है और उसमें उनका इंडिकेशन रहता है ये सभी इसमें चलेगा, तो इनको क्या बताना है कि ये द्रव्य व्याधि प्रत्यनिक है, लेकिन हमको तरतम भाव से यूज करना चाहिए. देखिए हर एक कंपनी मेडिसिन बनाती है, हर एक कंपनी मेडिसिन बनाने के बाद उसके पीछे उनके बहुत सारे थिंकिंग्स रहते हैं, बहुत सारे संप्राप्ति विघटन रहते हैं, तो वो कैसे करना है ये पूरे तरह से हम तक नहीं पहुंच पाता. इसलिए कुछ कंपनी के मेडिसिन के हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि हम अच्छी तरह से वो यूज नहीं करते. वो आगे देखेंगे. इस टाइप का व्याधि प्रत्यनिकत्व चरक संहिता में ऐसे बोला है. विमान स्थान में व्याधि प्रत्यनिकता कैसे बताया जाए और व्याधि प्रत्यनिक दवा, व्याधि प्रत्यनिक भेषज कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसका एक रेफरेंस विमान स्थान में है. आम प्रदोषजानाम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति. अगर कोई आम प्रदोषज रोग है, कोई संतर्पणत्व रोग है, अवरोधजन्य रोग है, तो अपतर्पणेन एव उपरमो भवति. अगर उसका अपतर्पण किया तो उसका उपशय मिलता है. अपतर्पण यानी लंघन करना है. लंघन के प्रकार है 10. चतुष्प्रकार औषधि पिपासा मारुतात्व और 4 प्रकार के शोधन कर्म. अगर इससे अपतर्पण होता है, इससे उपशय मिलता है तो बहुत ही ठीक है, सतीत्व अनुबंध है. लेकिन अपतर्पण हमने कम कर दिया, हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा की यानी निदान परिवर्जन किया, हेतु बंद कर दिए, अपतर्पण किया, अवरोध कम किया, फिर भी सतीत्व अनुबंध है. अगर फिर भी व्याधि का अनुबंध रहता है तो कृत अपतर्पणा नाम यानी शोधन करने के बाद व्याधि नाम निग्रह, व्याधि कम करने के लिए हमको निमित्त विपरीतम अपास्य यानी निदान परिवर्जन चिकित्सा भी बंद करनी है. निदान परिवर्जन हो गया, अवरोध जो है वो कम हो गया, सो निदान परिवर्जन चिकित्सा हमको बंद करनी है और उसके बाद आतंक विपरीतम यानी व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है. यानी आमवात है, आमवात में हमको ब्रूहण कल्प अगर यूज करना है. निरुपस्तंभित वातव्याधि है, निरुपस्तंभित वातव्याधि में हमको ब्रूहण कल्प यूज करना है,
तो पहले उपस्तंभ हमको कम करना चाहिए। अगर उपस्तंभित बात कुछ है, उपस्तंभित संधिवात है समझो, तो पहले निदान परिवर्जन करके, अपतर्पण करके, शोधनादि कर्म करके, जैसे पूरा अवरोध कम हो जाता है, पूरा अपतर्पण हो जाता है, इसके बाद भी अगर व्याधि बचती है तो आतंक विपरीतम यानी व्याधि विपरीत चिकित्सा हमको करनी है, ये हमको बताया है। अगर प्रमेय है, प्रमेय संतर्पण जन्य बताया, प्रमेय में संतर्पण हमको कम करने के बाद, यानी निदान परिवर्जन करने के बाद, अवरोध कम करने के बाद अगर प्रमेय के लक्षण कुछ बचते तो उसमें हम वसंत कुसुमाकर रस दे सकते हैं, उसमें हम सुवर्ण मालिनी वसंत का यूज कर सकते हैं। इस टाइप की चिकित्सा हमारे ग्रंथों में बताई है, ये हमको व्याधि विपरीत चिकित्सा बताई गई है। तो सर्व विकाराणाम अपि च विग्रह, तो सर्व विकार हमको कम करने के लिए हेतु विपरीत तो करना ही है और उसके साथ व्याधि विपरीत भी करना है, नहीं तो उसके अर्थकारी करना है। अब ये अर्थकारी का टॉपिक हमारे लेक्चर में नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यह है व्याधि प्रत्यनिकता। इस टाइप व्याधि प्रत्यनिक औषध का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको इसका उपयोग अच्छी तरह से हमारे ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद है व्याधि अवस्था। गुण प्रत्यनिकता देखी हमने, व्याधि प्रत्यनिकता देखी, अभी व्याधि अवस्था प्रत्यनिकता देखेंगे। चिकित्सा अकॉर्डिंग टू व्याधि अवस्था। So in all types of text, in all types of Sahitas, only avasthas are mentioned. Only avasthas are mentioned, and we have to identify that avastha and we have to treat the patient with that kind of the medicine, with that kind of drug. समझो हमारे पास पथ्या चूर्ण है, सिर्फ हरित की चूर्ण है, हरित की चूर्ण का अवस्था अवस्था वीक्ष हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऋतु हरित की बताया, इस ऋतु में क्या करना चाहिए, कुछ गुड़ के साथ खाना चाहिए, उस ऋतु में मध के साथ खाना चाहिए, शहद के साथ खाना चाहिए। तो इस टाइप को हमको देखना पड़ेगा कि एक ही मेडिसिन हर एक अवस्था में कौन से अनुपान के साथ, नहीं तो हर एक अवस्था में कैसे काम करेगा, ये हम अवस्था में देखेंगे। शोधन और शमन, ये अवस्था की चिकित्सा है। शोधन और शमन है, ये मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसे कोई वैकल्पिक भाव हमारे संहिता में नहीं रखा है। जहाँ पे शोधन नहीं होना है, जहाँ पे शोधन कर नहीं सकते, वहां पे वमन, यहाँ पे शमन करो, ऐसा नहीं बताया। अब शोधन पॉसिबल नहीं है, समझो एक आध पेशेंट को नहीं जम रहा है, हमको भी नहीं जम रहा है, और पेशेंट अगर बहुत ही बहुदोष है, दोष का उत्क्लेश है, पूरी तरह से उत्क्लेश है, तो उसमें हम शमन नहीं दे सकते, उसमें हमको शोधन ही देना है। तो शोधन और शमन बोलने के बजाय शोधन एंड शमन ये बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि शोधन एंड शमन यही चिकित्सा का भाग है। तो इस टाइप के अवस्था में हम चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे व्याधि अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, नहीं तो कौन सी अवस्था में क्या करना चाहिए, उसके कुछ रेफरेंसेस हम देखते हैं। मैंने ज्यादातर रेफरेंस ज्वर चिकित्सा में लिया है, ज्वर चिकित्सा से लिया है, क्योंकि ज्वर ये प्रातिनिधिक व्याधि है, यानी ज्वर के बहुत सारे सिद्धांत बाकी के व्याधि को भी वैसे के वैसे लागू होते हैं। इसलिए ज्वर सिद्धांत की चिकित्सा के कुछ चिकित्सा अवस्था के सूत्र मैंने लिए हैं। कफ प्रधान उत्क्लिष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुधवा ज्वरकरान काले वम्याना वमनैर हरे। कफ प्रधान उत्क्लिष्टान, जो दोष कफ प्रधान है, उत्क्लिष्टान यानी उत्कृष्ट, उनका उत्क्लेश हो चुका है। दोषान आमाशय स्थितान, वो आमाशय में भी है, दोष कफ प्रधान है, उत्कृष्ट है, उत्क्लेश हो चुका है, और वो दोष आमाशय में भी है। तो ऐसे दोष में हमको वमन ही देना चाहिए, क्योंकि बुधवा ज्वरकरान काल यानी कालांतर से वो ज्वर कर होते हैं, यानी ज्वर निर्माण कर सकते हैं। ज्वर यानी सिर्फ ज्वर नहीं, ज्वर, हाँ, ये पर्याय हमारे व्याधि में भी आया है। कौन सा भी व्याधि, कफजन्य व्याधि, अवरोधजन्य व्याधि निर्माण कर सकते हैं। अगर दोष उत्क्लेशित हो तो इसमें वमन ही देना चाहिए। अगर इसमें हमने शमन चिकित्सा दी तो शमन तो हो जाएगा, लेकिन जब होना है तब नहीं होगा, उसको बहुत देर लगेगी, और तब तक उत्कृष्ट हुए दोष हमारे शरीर में कौन से भी व्याधि निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको अल्टरनेटिव नहीं है, हम यहाँ पे हमको शोधन ही करना है। ज्वराः कषायैर्वमनैर्लङ्घनैः लघुभोजनैः वृक्षस्य येन शाम्यन्ति सर्वैः तेषां विषज्ञता। जे जो प्रकार के व्याधि, जिस प्रकार के व्याधि कषाय, वमन, लंघन, लघु भोजन, रुक्षता, रुक्षण, इससे शमन नहीं होते, तो इसमें हमको सर्पी का प्रयोग यानी घृत का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक अवस्था बताइए, ये इस अवस्था में हमको घृत करना है ज्वर में, यानी कौन से भी व्याधि में, नहीं तो ज्वर में। यहाँ पे हमने अगर रुक्षण कर लिया है, कुष्ठ में भी रुक्षण कर लिया है, और वो रुक्षण होने के बाद वो शमन नहीं हो रहा है उसका, तो वहां पे हमको स्निग्ध चिकित्सा करनी चाहिए, वहां पे हमको घृत देना चाहिए, नहीं तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ स्नेह देना चाहिए।
ये इस श्लोक का अर्थ है। वृक्षम तेजो जोरकरम तेजसा रुक्षित से, यानी जो वृक्ष जो वात है वो वृक्ष भी है, तेज के गुण युक्त भी है, और रुक्षण कर रहा है, उसको शमन करने के लिए स्नेह का ही उपयोग करना चाहिए। वो स्नेह से ही वध्य होगा, यानी स्नेह से ही जीता जाएगा, इसलिए उसमें स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। ये अवस्था में ऐसे बोला है। और एक हम रेफरेंस देखते हैं, शीतोष्ण वृक्ष स्निग्धाद्या ज्वरो यस्यन शाम्यति शाखानुसारी रक्त से सोवसिकत्व साम्यति। शीत उष्ण वृक्ष और स्निग्ध, ये दोनों ही अपोजिट है। शीत उष्ण वृक्ष और स्निग्ध, ये चार ही प्रकार की हमने अगर ट्रीटमेंट कर दी, चार ही प्रकार के गुण युक्त भेषज गुण प्रत्यनिक द्रव्य हमने दिए, फिर भी ज्वरो यस्य ने साम्यति, फिर भी एकाध व्याधि अगर शमन नहीं हो रहा है, तो उसको शाखागत कहलाना चाहिए। और शाखागत है तो वहां से अवसेक करना चाहिए, यानी रक्तमोक्षण करना चाहिए। इस टाइप के व्याधि में हमें अगर रक्तमोक्षण करते हैं तो उसमें हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस टाइप का ये सूत्र है, इस टाइप की अवस्था है। अभी ये एक रेफरेंस है हिक्काश्वास चिकित्सा में, कासिने छर्दनम दद्यात स्वरभंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरेर युक्तम तमकेतु विरेचनम। हमको तमकेतु विरेचनम इतना ही मालूम है, ये वर्ड पे थीसिस भी हो गए कि तमक में विरेचन कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने अधिकरण तंत्र युक्ति का इस्तेमाल किया, अधिकरणम नाम यमर्थम अधिकृत्यम प्रवर्तते कर्ता, यानी कर्ता अधिकरण है। जैसे अगर हमने रस शब्द का उच्चार किया तो रस से धातु भी होता है, रस से पारद भी होता है, रस से आहार रस भी होता है। अगर हम पचन संस्था के लिए बोल रहे हैं तो रस का अर्थ आहार रस लेना पड़ेगा। धातु के शाखा की अवस्था में बोल रहे हैं तो रस का अर्थ धातु लेना पड़ेगा। अगर रस शास्त्र हमको देखना है तो रस का अर्थ पारद लेना पड़ेगा। ऐसे हर एक शब्द का अर्थ होता है। तो अगर ये अधिकरण तंत्र युक्ति हमने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि ये चिकित्सा जो है हिक्का श्वास की है। हिक्का और श्वास के अध्याय में आया है, यानी इसका अधिकरण है हिक्का और श्वास, और हिक्का और श्वास में अधिकरण आया है तो श्वास अगर स्वरभंग नहीं तो कास इसके साथ है, श्वास व्याधि और हिक्का व्याधि अगर स्वरभेद और कासिने छर्दनम दद्या स्वरभंगे च, स्वरभंग और कास के साथ अगर श्वास नहीं तो हिक्का व्याधि है, तो वहां पे छर्दन देना चाहिए, यानी वहां पे वमन देना चाहिए। और वात और श्लेष्म भूयिष्ठ है, और तम प्रवेश, जैसे पित्त का लक्षण दिख रहा है, पित्त का लक्षण है तम प्रवेश। अगर आपने संहिता में देखा तो आपको समझ में आएगा, पित्त का लक्षण है तम प्रवेश, यानी श्वास में अगर तम प्रवेश जैसा लक्षण दिखता है और वात श्लेष्म बहुलता है तो उसमें विरेचन देना चाहिए, ना कि तमक श्वास में। ये सभी श्वास की चिकित्सा है। अगर सभी श्वास में अगर तम प्रधान लक्षण है तो उसमें विरेचन देना चाहिए। सभी हिक्का में अगर तम प्रधान लक्षण है तो उसमें भी विरेचन देना चाहिए। ऐसा ये अधिकरण तंत्र युक्ति से लेना है, इस टाइप का। उस ये अवस्था बताइए कि अगर कास और स्वरभेद है तो वमन करो, वात श्लेष्म भूयिष्ठ है, दोष की गति नीचे तक है, और तमक तमक प्रवेश जैसे पित्त का लक्षण, पित्त का अनुबंध दिख रहा है तो वहां पे विरेचन करो। इस टाइप का अवस्था में वर्णन बताया है। और एक श्लोक देखेंगे, तमका कपका से तु स्याचेत पित्तानुबंधनम पित्त का सक्रियम तत्र यथावस्थ्यम प्रयोजक। ये काश व्याधि में काशी चिकित्सा में आया हुआ श्लोक है। अगर तम प्रवेश है, तम सिर्फ फिर से तम प्रवेश आ गया, ये पित्तानुबंधी आ गया, पित्तानुबंधनम बोला है, तमक लक्षण है पित्तानुबंधी अगर कफ काश में आ गया, कफ काश में भी आ गया तो पित्त काश क्रिया करो, तो पित्त काश की चिकित्सा करो, ऐसे बताया। इस टाइप के काफी रेफरेंसेस हमको अवस्था के बारे में हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। तो इस टाइप की चिकित्सा हमें अवस्थान अवस्थान अवीक्ष करना है, ये वात व्याधि अवस्था है। ये हमने गुण प्रत्यनिकता देखी, हमने व्याधि प्रत्यनिकता देखी, हमने अवस्था प्रत्यनिकता देखी। अगर हम हमारे पास टाइम कम है, फिर भी 10 मिनट है तो हम 10 मिनट में पूरा करेंगे। अभी हमने करंट सिचुएशन देखी, तो बाहर के हमको प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो मिलते हैं, कंपनी के जो द्वारा मेडिसिन मिलते हैं, अभी जो मैंने बताया वो जनरलाइज मेडिसिन रहते हैं। कोई कंपनी का एक प्रतिनिधि आपके पास आता है और बोलता है कि ये सभी कास में चलेगा। मुझे नहीं लगता ये लेक्चर सुनने के बाद आप विश्वास करोगे कि एक ही ड्रग सभी कास में चलेगा उनका। ये ब्रॉड इंडिकेशन वाला है, कौन से भी टाइप का ये रहो, कौन से भी टाइप का पेन रहेगा तो उसमें ये काम करेगा। अगर पेन उपस्तंभित है, निरुपस्तंभित है, अवरोधजन्य है, आमजशूल है, साम पित्त जन्य शूल है, साम पित्त का अवरोध हुआ है तब हुआ शूल है, भाई सभी में काम कर सकता है एक ही द्रव्य? नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक संप्राप्ति ही अलग है, हर एक संप्राप्ति हर एक गुण के अलग है, यानी एक ही गुण का ये मेडिसिन नहीं है, तो ये हर एक इस पे काम नहीं करेगा।
तो आपको तरतम भाव से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंपनी का भी ड्रग है, उन्होंने इतना ब्रॉड इंडिकेशन भी बताया है, लेकिन हमको ये ड्रग कैसे यूज करना है, किस टाइप का यूज करना है, कौन से भी कंपनी का जो हो। आपके पास जो प्रतिनिधि आता है, नहीं तो कंपनी जो आपके पास लिटरेचर वगैरह बेचती है, नहीं तो आपको कुछ ग्रंथों में हम पाए जाते हैं, उसमें एक ही रहता है कि कंपनी की तरफ से आया हुआ ड्रग, नहीं तो लिटरेचर, उसमें कहीं भी द्रव्य गुण कर्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नहीं लिखे होते। दिस ड्रग इज लैक्सेटिव, दिस ड्रग इज कार्मिनेटिव, दिस ड्रग इज डाइजेस्टिव, दिस ड्रग हेल्प्स इन मेंटेनिंग जीएबीए रिसेप्टर्स, मेंटेनिंग ये ऐसे पूरी तरह से एलोपैथी वर्ड यूज करके अच्छी तरह से संप्राप्ति कौन सी है, संप्राप्ति कैसे भंग करना है, इस ड्रग में द्रव्य कौन से है, एक्चुअली सिनर्जिस्टिक के लिए ये द्रव्य कौन से गुण से काम कर रहा है, ये ड्रग कौन से गुण से काम कर रहा है, ये शीत है, ये स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, ये अवरोध दूर करने वाला है, नहीं तो ये संप्राप्ति ऐसे भंग करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा रहता। ये होना चाहिए, ये लिखा रहना चाहिए, तो हम अच्छी तरह से उसका यूज करेंगे और कंपनी भी अपने ड्रग से फायदेमंद काम करेगी। अगर आपने समझो कुछ कंपनी के बहुत सारे प्रतिनिधि आपकी तरफ आते होंगे, एक ही द्रव्य रहता है, किसी कंपनी का कॉस्टली होता है, किसी का चीपर होता है, उससे चीपर होता है, लेकिन जो उनका प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन है, वो इस टाइप का होना चाहिए, स्पेसिफिक इंडिकेशन होना चाहिए कि ये ड्रग कौन से व्याधि में कौन से अवस्था में काम करेगा, उसकी दोषग्नता क्या है, उसकी कर्मुकता क्या है, वो कौन सी टाइप की संप्राप्ति विघटन करेगा। ये यानी ये अवरोधजन्य संप्राप्ति में चलेगा, ये क्षयजन्य संप्राप्ति में चलेगा, ये कफ का अवरोध है तो चलेगा, ये क्लेद का अवरोध है तो चलेगा, इसमें क्लेद ज्यादा है तो ये चलेगा, इसमें वृक्षता ज्यादा है तो ये चलेगा, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा रहता। तो हमको उस कॉम्बिनेशन के ड्रग के कॉम्बिनेशन के बाद ही हमको पता चलेगा। कॉम्बिनेशन तो देखना ही है हमको, लेकिन उसका प्रमाण भी देखना है। अगर 10 ml में काफी एमजी में अगर ड्रग जा रहे हैं तो उस ड्रग का डोज का उपयोग भी नहीं होगा। तो ये भी हमको सभी देखना है। जैसे भी इस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल भी आपके सामने आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में भी हमको वही देखना पड़ता है कि क्लिनिकल ट्रायल किस टाइप के हुए हैं। सभी लोगों को ज्वर की एक ही दवाई सूट नहीं करेंगी। कफ ज्वर है तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति चलेगी, पित्त ज्वर को त्रिभुवन कीर्ति बढ़ाएगी। ये तो हमको सीधा इसमें कोई यानी कोई किसी ने कहने की नहीं तो किसी को ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर एक ही टाइप के ड्रग का हर एक पेशेंट पर सेम ज्वर के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ट्रायल में कुछ ना कुछ लैक्यूना है, हम ऐसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। वैसे ही क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स हमको कैसे करने हैं, उसमें दशविध परीक्षा भाव का भी कभी कभी अभाव रहता है। कभी कभी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ कंपनियों में इस टाइप के प्रोटोकॉल है कि उसमें दशविध परीक्षा भाव का भी अंतर्गत किया है, उसको अंतर्भूत किया है दशविध परीक्षा भाव में। तो कभी कभी ऐसे भी हमको पता चलता है, दुष्य अलग है, देश अलग है, प्रकृति अलग है, वय अलग है, बल अलग है, फिर भी सभी को एक ही डोज देके अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो वो ड्रग कैसे काम करेगा। तो इस टाइप के ड्रग्स, नहीं तो इस टाइप के ट्रायल हमको इसमें लाने हैं और इस टाइप का सिनारियो हमको कम करना है। बहुत सारे हमारे जैसे कुछ लोग हैं, हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, वो किसी ज्येष्ठ वैद्य की तरह अंडर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, नहीं तो कुछ कॉलेज में देखते हैं और वहां पे पढ़ते हैं, अरे हमारे सर ने तो प्रतिष्ठा के लिए ये योग दिया था, ये योग अच्छा है, हम लिख लेते हैं। हमारे सर ने शिरोशूल के लिए ये योग दिया था, ये योग अच्छा है, ये हम लिख लेते हैं। फिर अगर शिरोशूल का उनके पास पेशेंट आता है तो वही योग का इस्तेमाल करते, वही योग प्रिस्क्राइब कर लेते और उसमें शिरोशूल कम नहीं होता। तो ये अंधानुकरण करना हमको छोड़ना चाहिए। ये जो अंधानुकरण है, ये हमारे आयुर्वेद पे ही, हमारे आयुर्वेद के लिए भी घातक है। यानी इसमें इससे हमारे आयुर्वेदिक साइंस पे जो लोगों का विश्वास है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ज्येष्ठ वैद्य ने दिया है तो उसके पीछे उसका कुछ एक्सपीरियंस है, उसके पीछे उसने कुछ तो भी अवस्था देखी होगी। ये पित्तजन्य है, ये संप्राप्ति ऐसे है, ये संप्राप्ति जीर्ण है, नहीं ये नया हुआ है, इस टाइप का प्रतिशय होगा। और उस टाइप में वो प्रतिशय का योग जो लिखा है वो योग उन्होंने दिया होगा। अगर वही योग ब्लाइंडली हम हमारे प्रैक्टिस में अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, पेशेंट भी बाउंस हो जाएगा और हमारा आयुर्वेद साइंस भी खराब हो जाएगा, उसका नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसे हमको नहीं करना है और प्रॉपर मेथड पे एप्लीकेशन करना है। यानी जहाँ पे शोधनार्ह बताया है वहां पे ही शोधन करना है। वहां पे अगर नहीं बताया है, दोषी उपस्थित नहीं है, तो हमको शोधन करने से कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही हो जाएगा। तो इस टाइप का थिंकिंग, इस प्रकार के विचार हमको करने हैं और उसके बाद हमको चिकित्सा करनी है। अभी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो हमने बताया। ये 5 मिनट में
हम खत्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिलना चाहिए। एप्लीकेशंस हमने दिखाया, तो योजक तत्र दुर्लभ, यानी हम योजक है, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जो प्रॉपर संप्राप्ति विघटन कर रहे हैं, हम पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हैं, हम पेशेंट की व्याधि कम कर रहे हैं, तो हम योजक है। योजक तत्र दुर्लभ ऐसे बोला है, यानी हम ही दुर्लभ है। हमको अवस्थान अवस्थान वीक्ष, गुणान गुणान वीक्ष, व्याधीन व्याधीन वीक्ष, हमको सिर्फ दवाई की योजना करनी है। आपके पास, आपके हाथ में 1000 कल्प की विकल्पता है, 1000 कल्प है, 1000 ऑप्शन है आपके हाथ में, नहीं तो 100 ऑप्शन है, लेकिन अवस्था देखने के बाद आपको राइट ऑप्शन राइट टाइम पे काम करना है। राइट टाइम पे वो ऑप्शन हमको एप्लीकेशन करना है उसका, तो ही हमको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेंगे और हम चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाएंगे। अभी ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी है श्री ब्रह्म चैतन्य आयुर्वेद, मैं मेरी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये लेक्चर से रिलेटेड है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला था कि हमने ये 3 प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल, टैबलेट क्लेदारी, टैबलेट पैसिड, टैबलेट कैप्सूल, कैप्सूल ऑस्टोएनवी एक्सेट्रा, इस टाइप के कुछ कैप्सूल्स है हमारे। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्लेदारी, तो इसमें हमने क्लेदारी टैबलेट का नाम लिखा है, इससे हमको पता चलेगा कि ये टैबलेट सिर्फ क्लेद पे काम करेगी, जहां जहां क्लेद है वहां वहां ये काम करेगी। हम अगर इसका प्रमोशन करते भी है तो क्या बोलेंगे कि ये टैबलेट आपको जहां क्लेद प्रधानता है वही देनी है। तो क्लेद प्रधानता कहाँ मिलेगी, आपको व्रण में मिल सकती है, आपको प्रमेह में मिल सकती है, आपको कुष्ठ में मिल सकती है, आपको अवरोधजन्य संप्राप्ति में मिल सकती है। अगर एक हाथ पेशेंट में अत्यंबुपान की हिस्ट्री और उसके बाद अगर कुछ ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो रहे हैं, शिरो रोग हो रहे हैं, प्रतिशय हो रहा है, उसमें अगर क्लेद बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें मिल सकती है। इस टाइप के रिजल्ट जहां जहां क्लेद है वहां वहां ये टैबलेट देगी। ये टैबलेट व्याधि प्रत्यनिक नहीं हुई, ये टैबलेट हुई अवस्था प्रत्यनिक, क्योंकि क्लेद जहां पे अवस्थात्मक है वहां पे ही ये काम करेगी। इसमें त्रिफला है जो वृक्ष है, त्रिकटु है जो भी वृक्ष है, त्रिमद है मुस्तविडंग चित्रक वो भी वृक्ष है, और उसमें नवाया स्लोह भी है, वो तो वृक्षतम कल्प है उसमें, क्योंकि ये सभी रहता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन है क्लेदारी टैबलेट। तो जहां पे हमको रुक्षण करना है, जहां पे हमको क्लेदग्न क्रिया करनी है, वहीं पे ये काम करेगी। जहां पे क्लेदग्न क्रिया नहीं करनी, यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर कुष्ठ में क्लेदारी पहले दी और क्लेद कम हो गया, उसके बाद कुष्ठ में ये टैबलेट काम नहीं करेगी। प्रमेह में अगर क्लेद प्रधानता नहीं है तो ये टैबलेट प्रमेह में काम नहीं करेगी। हमने लिटरेचर में आप वैद्यों को क्या एजुकेट किया है कि ये सिर्फ क्लेद पे काम करने वाली टैबलेट है। तो आप योजक है, आपको पता है क्लेद कहाँ पर है, अभिसंध कहाँ पर है, वहीं पे अगर टैबलेट का आप यूज करते हैं तो ही आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। अगर वहां पे यूज नहीं करते, आपकी योजना गलत हो जाएगी और टैबलेट भी काम नहीं करेगी, आपको गुण भी नहीं आएगा। इस टाइप के मेडिसिन और इस टाइप के लिटरेचर, इस टाइप के प्रेजेंटेशन मार्केट में आने चाहिए, जैसे हम वैद्यों के लिए बहुत सारे उपयोगी हैं। इस टाइप के लिटरेचर हमको चिकित्सा करने में और अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं। एक ही ड्रग हम अनेक व्याधि में अवस्था के अनुसार दे सकते हैं, उसके बाद हमको ड्रग चेंज करना है अगर अवस्था उसमें चली गई तो इस टाइप का प्रमोशन होना चाहिए, इसी टाइप में क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, इसी टाइप में डाटा जनरेशन होना चाहिए, इसी टाइप में उसका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होना चाहिए। और संप्राप्ति विघटन ये टैबलेट कैसे करेगी, संप्राप्ति विघटन ये आपका ड्रग कैसे करेगा, इससे एजुकेशन हमको मिलना चाहिए। तो इस टाइप के अगर मार्केट में प्रेजेंटेशन आते हैं, इस टाइप के मार्केट में ये आते हैं, तो हमको ट्रीटमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसमें दशविध परीक्षण भी हमको करना है और इस टाइप में हमको व्याधि निर्धारण करने में मदद हो जाएगी। तो टेक होम मैसेज यहाँ में ये मैं दे सकता हूँ कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। अगर दोष वैषम्य है तो रोग होने वाले ही है, दोष अगर प्राकृत अवस्था में तो रोग नहीं होने वाले। चाहे अभी हमारा लेक्चर था आज गुण प्रत्यनिकता, व्याधि प्रत्यनिकता और अवस्था। हमने गुण की चिकित्सा की, गुण प्रत्यनिक भी चिकित्सा की, व्याधि प्रत्यनिक भी चिकित्सा की, अवस्था प्रत्यनिक भी चिकित्सा की। वो चिकित्सा हम दोष पे ही कर रहे हैं, हमने जो कुछ चिकित्सा कर रहे हैं वो दोष पे ही कर रहे हैं। दोष पे हम जो चिकित्सा करते हैं उससे पहले अपने आप स्थान की चिकित्सा हो जाती है। पहले स्थान हम चिकित्सा करके अच्छा करते हैं, जहाँ पे विकृति है, जहाँ पे विकृति है वो स्थान, जैसे हमने बताया खरता, परुषता, विशदता स्रोतस में है,
वो अगर स्रोतस में की खरता स्निग्धादि गुण से कम होती है तो वो पहले स्थान की चिकित्सा हो गई, अगर स्थान की चिकित्सा हो गई तो अपने आप दोष की चिकित्सा हो गई। तो अल्टीमेटली हम जो चिकित्सा कौन से भी टाइप से कर रहे हैं वो दोष की ही कर रहे हैं, वो दोष की ही कर रहे हैं। तो हमको दोष की चिकित्सा ही करनी है। और जो कुछ हम चिकित्सा के प्रकार करते हैं, रस से चिकित्सा, गुण से चिकित्सा, गंध से चिकित्सा, व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा, दोष प्रत्यनिक चिकित्सा, जो कुछ भी चिकित्सा के प्रकार है, अल्टीमेटली दोष साम्य हमको करना है। ये टेक होम मैसेज मैं आपको यानी मैं आपको दूंगा कि ये टेक होम मैसेज हमको करना है। लेकिन हमको ये गुण प्रत्यनिक व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य का विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ अवस्था में हमको इस टाइप का ही विचार करके दोष की चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि दोष जो प्रकट होते हैं हमारे सामने वो गुण से ही प्रकट होते हैं। गुण की चिकित्सा हमको करनी है। गुण की चिकित्सा होने के बाद, निदान परिवर्जन होने के बाद भी दोष शेष शिल्लक है और दोष शेष है और व्याधि निर्माण करने में उनकी क्षमता है, नहीं तो व्याधि हुआ है, व्याधि के लक्षण अनुबंध नहीं कम हुआ है तो फिर हमको व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी है। और हर एक अवस्था में हमको कौन से कल्प, कौन सी योजना करनी है, वो तो संहिता की गाइडलाइन से ही हमको करना है। इस टाइप की चिकित्सा हम कर सकते हैं। सो आयुर्वेद में जो कुछ श्रद्धा रखेगा, आयुर्वेद विधा यही तद अभ्यास रहता चाहिए। हर एक बार हमको अभ्यास करने से हर एक गुण संहिता का हमको पता चलता है। तो आयुर्वेद शास्त्र को प्रणाम करते हुए और आयुर्वेद में दृढ़ श्रद्धा करते हुए और सबका कल्याण इच्छिते हुए मैं आज का टॉपिक संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। वैद्य श्रीकांत जी। Yes, sir. Thank you very much, Sriran sir, for such an detailed explanatory session. Now, I would like to request all the participants to please post their question in the chat box. For question answer session, I would like to invite Dr. Saranga Deshpande sir to please join us. I request all the participants to please put their questions in the chat box, or they can directly switch on their mic. You are not audible, sir. Sarang sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sarang sir. Sarang sir, please switch on your mic. Hello? Yeah, you are audible, sir. Hello? Yes, sir, Hello? you are audible. हाँ, धन्यवाद डॉक्टर श्रीरंग सर। वैसे देखा जाए तो समझने में और समझाने में दोनों दृष्टि से ये जो विषय आपने लिया है वो काफी क्लिष्ट विषय है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आपने ये सबके सामने ये विषय रखा है। और एक दृष्टि से तो मैं कहूंगा कि नववैद्यों के सामने एक तरीके से आपने आयुर्वेद चिकित्सा का पूरा के पूरा सार आपने रखा हुआ है। चिकित्सा तो ये औषधियां भी किस प्रकार से वैद्य रखती है या वैद्यों ने सापेक्षता से इनका उपयोग करना चाहिए, ये भी आपने बहुत ही सरल तरीके से सबको समझाया है। मेरा सर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि जैसे गुण व्याधि और अवस्था के हिसाब से तो औषध योजना निश्चित करनी चाहिए, ये तो आयुर्वेद की आत्मा ही है ये सब चीजों के लिए। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए, आज के पैंडेमिक सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पुरुषम वीक्ष चिकित्सा ये पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे पॉसिबल हो सकती है? और पैंडेमिक सिचुएशन में अगर एक सामान्य सिद्धांत, एक सामान्य विकल्प अगर हमने देश के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने अगर रखना है
तो उस दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा को या आयुर्वेदिक औषधि योजनाओं को या आयुर्वेदिक कल्पों को हम किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए या किस ओके सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे मैं पहले कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद का जो हेतु है, आयुर्वेद अवतरण का हेतु जो है, वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमन ऐसा है। तो पहले तो हमको स्वास्थ्य रक्षण के लिए प्रयत्न करने चाहिए, पहले हमको दोष साम्य करने के ही प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन अगर जैसे पैंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, इस सिचुएशन में जनोपद ध्वंस विमान में जो बताया है कि दूषित वायु, दूषित जल, दूषित काल जो होता है, तो पहले से ही संग्रह करके हुए जो वनस्पति है उसका इस्तेमाल करने को बोला है। लेकिन हर एक इसमें जनपद ध्वंस में अगर हम जो कुछ भी कल्प रचना करते हैं, नहीं तो जो कुछ भी हमको मेडिसिनल प्रोटोकॉल हमको चाहिए, वो 2-3 टाइप के प्रोटोकॉल हमको अच्छी तरह से बनाने चाहिए कि जो प्रकृति की हिसाब से, जो वय के हिसाब से, जो बल के हिसाब से और जो व्याधि बल और रुग्ण बल के हिसाब से काम करेंगे। तो हर एक के लिए एक मेडिसिन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक पेशेंट के, नहीं तो हर एक प्रकृति के एक टाइप के संगठन के लिए, नहीं तो एक टाइप के सेट के लिए, संचय के लिए वो मेडिसिन हमको करनी चाहिए। यानी अगर ऐसा कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है, तो 3-4 टाइप के हमको प्रोटोकॉल्स रेडी रखने चाहिए कि जो ये प्रकृति में, ये वातावरण में, ये देश में, ये काल में अच्छी तरह से सूट करेंगे और संप्राप्ति विघटन करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो पैंडेमिक का ही अगर हमने अभी विचार किया, तो हर एक को सेम सिम्टम्स नहीं आए। हाँ, कुछ लोगों को कम आए, कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम के बावजूद बाकी सिम्टम्स भी आए। तो जैसे जैसे उनमें दोष का प्रकोप रहता है, जैसे जैसे उनकी स्थान विकृति होती है, वैसे उस स्थान में उनके लक्षण पाए गए, तो उस स्थान की चिकित्सा करने के लिए हमको पुरुषम पुरुषम विक्षत ट्रीटमेंट करनी ही चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो हम कॉमन यूज कर सकते हैं, उसका प्रोटोकॉल अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे पास मिस्टर अंकेश शर्मा जी का एक क्वेश्चन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया अपना माइक ऑन करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे। मिस्टर बोलिए अंकेश सर। शर्मा। हेलो। या यू आर हाँ सर, ऑडिबल सर। बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो। जी जी। सर, वो एक डाउट था, जैसे स्थानिक दोष बलवान है तो उसमें पहले चिकित्सा बताया है दोषों की, और यदि हाँ आगंतुक दोष बलवान है तो उसका पहले हाँ। चिकित्सा बोला है। अष्टांग हृदय 13 अध्याय में सर, सूत्र स्थान में। और यदि दोनों हम्म। तुल्य अंश में बढ़े हैं तो उसमें, हाँ जी जी, दोनों तुल्य अंश में बढ़े हैं तो दोनों में से किसी एक की चिकित्सा पहले बताया है। तो सर, इसको हम हाँ। लोग समझेंगे कैसे, मतलब दोष तुल्य अंश में बढ़े हैं कि, जी जी, और कि ये मतलब कौन सा आगंतुक दोष बलवान है कि स्थानिक दोष बलवान है, इसको थोड़ा बताएंगे। ओके सर, क्वेश्चन अच्छा है आपको। पहले 2 कंसेप्ट है हमारे आयुर्वेद में कि संसर्ग एक है, सन्निपात एक है, ठीक है। तो दोष संसर्ग और सन्निपात जी यानी 2 दोष अपने अपने गुण से बड़े होते हैं। यानी कफ कफ के कफ प्रकोपक हेतु से बढ़ा हुआ रहेगा, पित्त पित्त प्रकोपक हेतु से बढ़ा हुआ रहेगा, और वात वात प्रकोपक हेतु से बढ़ा हुआ रहेगा। हर एक दोष अपने अपने गुण से प्रकोपित होता है। ये एक प्रकार का संसर्ग, नहीं तो सन्निपात जी हम बोलते हैं। नहीं तो दूसरा जो है, तो एक दोष बढ़ता है और वो दूसरे को खींच के बाहर लेके जाता है। इस टाइप की संप्राप्ति रहती है, ठीक है। यानी एक समझो पित्त बड़ा नहीं है, लेकिन वात बड़ा हुआ है, और वात वो पित्त स्थान में आ गया और पित्त को खींच के बाहर ले गया, और पित्त बड़ा हुआ लगता है हमको। इस टाइप की संप्राप्ति, 2 टाइप की संप्राप्ति हमारे इसमें होती है। तो उसमें अगर आप समझ रहे कि दोनों दोष, नहीं तो तीनों दोष बलवान है, तो हमको क्या करना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है ना सर? जी जी हाँ, अगर तीनों ही दोष बलवान है, तो हमारे चरक में ही ज्वर के चिकित्सा में बताया है, कफ स्थानानुपूर्वा सन्निपात ज्वरम जय, ठीक है। तो कफ जी स्थान पूर्व यानी पहले जो, अगर तीनों दोष बड़े हैं और हमको कंफ्यूजन है कि कौन सा दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, तो कफ स्थान की चिकित्सा यानी कफ दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, उसके बाद पित्त की और उसके बाद वात की करनी चाहिए। ऐसे चरक ने चिकित्सा जी स्थान में ज्वर के आधार में बताया। जी। सर, इनका जो तरतम अवस्था है दोषों का, उसका मतलब लक्षणों से उसको पहचानना है। गुण से ही पहचानना पड़ेगा, वो क्या क्या कर रहे हैं, उससे हमको पहचानना जी पड़ेगा कि कौन सा दोष कैसे बड़ा हुआ है।
और फिर और ये भी पहचानना पड़ेगा कि वो जी जी स्वतंत्र बड़ा धन्यवाद है या परतंत्र बड़ा है, स्वतंत्र बड़ा है परतंत्र बड़ा है, वो भी हमको पहचानना पड़ेगा। जी ओके, थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। I request all और the कोई क्वेश्चन? participants. अगर किसी को और यस सर, क्वेश्चन नितेश पूछना हो विकानंद तो वाणी। प्लीज अपना माइक ऑन करें। I think we should move towards next session, that is हाँ श्रीरंग सर, neuroscience. श्रीरंग सर, हाँ सर, हेलो बोलिए श्रीरंग सर। सर। बोलिए मैं सर। सिर्फ एक और एक सिंपल क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहूंगा कि हाँ बोलिए। नववैद्यों के लिए और जो अभी अभी प्रैक्टिस में उतरे हैं उन उन सब लोगों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक अगर बोला जाए तो ये विषय समझने में बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है, बहुत ही ज्यादा हम्म क्लिष्ट है। अब एक हम्म हिसाब से फिर ऐसा समझ में आता है कि जो वैद्य पूरी तरह से तज्ञ है, पूरी तरह से होशियार है, पूरी तरह से आयुर्वेद का प्रगाढ़ पंडित है, वही शायद हम्म आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर पाए। तो उन हम्म। वैद्यों के लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे या उनको कौन सी मेथड आप सजेस्ट करना चाहोगे जिसको लेके वो अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा में ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सके या अच्छी से अच्छी तरह से रुग्णों को फायदा पहुंचा सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं मेरे क्लिनिक में भी ये मेथड यूज करता हूँ, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और मुझे काफी आनंद होगा शेयर करने में। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट आने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी शर्मा सर ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और कौन सा दोष कैसे बढ़ा हुआ है, उसका तरतम भाव कैसा है, हमको क्या करना है, तो सीधे हमको क्या करना है कि जैसे हम लक्षण पेशेंट को पूछते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पेन है, कैसे पेन है, कौन सा पेन है, नहीं तो ये रुल्लास है, शवतु है, जो कुछ भी है पेशेंट में, तो वो जैसे हम पेशेंट को लक्षण पूछते हैं तो हम लक्षण हमारे केस पेपर पे लिखते हैं। तो केस पेपर पे हम जैसे लक्षण लिखते हैं उसके सामने उसको दोष को लिख डालो। अगर प्रतिशय है, प्रतिशय कफ, कफ के कारण है, उसके बाद कफ, उसके सामने कफ को लिख दो। फिर कफ के सामने उसका गुण लिख दो, कौन से गुण से बढ़ा हुआ है, स्निग्ध बढ़ा हुआ है, द्रव गुण बढ़ा हुआ है, शीत बढ़ा हुआ है, शीत से यानी शीत हेतु सेवन हुआ है उससे बढ़ा है। तो उसको ये लक्षण के बाद जो रोगी में लक्षण दिख रहे हैं उसके सामने आपका दोष आ जाएगा, उसके सामने उसका गुण आ जाएगा। तो जैसे दोष और गुण सामने आता है तो जो 3-4 लक्षण है, 5-6 लक्षण है, जो कुछ हमको पेशेंट में मिलते हैं उसपे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और कौन से दोष का कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ऐसे अगर दोष और गुण हमको पहचानने में आ जाएगा तो वो गुण प्रत्यनिक और वो दोष प्रत्यनिक जो कुछ भी आपके पास कल्प है वो आप दे सकते हैं। समझो आपके पास प्रताप लंकेश्वर रस है, प्रताप लंकेश्वर रस है और वहां पे हमको पेशेंट के लक्षणों में सामता दिख रही है, पेशेंट के लक्षणों में हमको कफ दोष प्रधान दिख रहा है, पेशेंट के दोष गुण लक्षण में हमको अवरोधजन्य संप्राप्ति दिख रहे हैं, और आपको प्रताप लंकेश्वर रस है जो सूती का अधिकार में दिया हुआ है। लेकिन सूती का अधिकार में दिया हुआ है, इसके क्यों दिया है, क्योंकि वहां पे बहुत सामावस्था रहती है सूतिका में। तो ये सामावस्था में सूतिका जैसे सामावस्था में अगर ये काम करेगा तो ये ऐसे टाइप की अवरोधजन्य संप्राप्ति में भी काम करेगा। तो ऐसे टाइप की अगर लक्षण दिख रहे हैं और आपके पास प्रताप लंकेश्वर भी है तो आप उसमें दे सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है वहां पे कि कौन सा लक्षण है, उसमें कौन सा दोष का ये लक्षण है और कौन से दोष में कौन से गुण से ये लक्षण उत्पन्न हुआ है। अगर आम्ल पित्त है तो ये पित्त का लक्षण है, पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, ये आपको लिखना है। तो हमको द्रव गुण की चिकित्सा करनी है और पित्त शामक चिकित्सा करनी है, शोषण चिकित्सा करनी है। तो हम पे हमारे पास कल्प अवेलेबल है, अभिपतिकर चूर्ण वृक्ष शोषण करता है, पित्त को सर गुणात्मक है तो पित्त को नीचे लेके जाएगा। उसके बाद शंख भस्म है वो द्रव शोषक है वो दे सकते हैं। उसके बाद नागर मोथा है मुस्ता, वो दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो कुछ है वो उसके उसके ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे कि जैसे गुण है, जैसे कौन सा दोष है, कौन से गुण है, इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद सर।
फिर भी मैं आपसे चाहूंगा आगे चल के कि ये टिपिकल आयुर्वेदिक हिसाब से, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से केस टेकिंग कैसे हम ले सकते हैं या लेना चाहिए, इसके ऊपर भी आपने हमें आगे एक आधा इंडिविजुअल सेशन रखने में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका वैसा भी एक टिपिकल सेशन हो हमारे लिए। बिल्कुल रख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब भी बताइए हम रख सकते हैं। और मुझे भी आपको शेयर करने में बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। काय यस प्रीति मैडम बोलिए। श्रीकांत सर, Yes, yes, sir. चैट I बॉक्स में request एक क्वेश्चन आया, नए वेबिनार की जानकारी कैसे मिल पाएगी? तो हमारे पास Okay. क्या है वैसे सॉल्यूशन? Yeah. I request you to please join our Facebook page, Technovid Solutions. You can also visit our website, technovidsolutions.com. मैं अभी आपके लिए ये चैट बॉक्स में आपके लिए दोनों चीजें अवेलेबल कर देता हूँ, जिसके द्वारा आप जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप पा सकेंगे। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर आपके लिए टेक्नोवेद सॉल्यूशंस ग्रुप एज अ मेंबर ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक अवेलेबल कर देता हूँ, जिसके द्वारा आपको सारे अपडेट्स हर बार मिल सकेंगे। I think we should move towards the next session, that is vote of thanks. I request Dr. Shubhangi Jadhav to proceed for the vote of thanks. Over to you, Dr. Shubhangi Jadhav. Thank you, Dr. Shrikant. On behalf of Technovet Solutions Nagpur, I would like to thank Dr. Sriranga Chapekar sir for his excellent guidance on today's topic. As all topic was related to practical aspects of treatment, listening to you was a real treat, sir, for all of us. Thank you. Thank you very much, sir. Further, I would like to thank Dr. Sarang Deshpande sir, Director Technovet Solutions Nagpur, and Dr. Shrikant Hadole sir, Secretary Technovet Solutions Nagpur, for organizing such an wonderful session. And also, I would like to thank all the participants for their patient listening. Hereby, I declare that today's session is ended. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, all of you. You will shortly receive the e-certificate for this session. Thank you.